फ्रेंड्स इन द मीडिया, आज बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके लिए मैंने आपको बुलाया है। आज जो हमारा थानचा का कॉन्सेप्ट था उसको अग्री करके, उसको मान के श्रीमती पताल कन्या हैज़ ऑफिशियली डिसाइडेड टू withdraw all her 28 candidates in the interest of the larger cause of unity। और उससे भी ज़्यादा पताल कन्या herself has agreed to my request of becoming the principal advisor to the Tipra Motha, and her advice will also help us in the upcoming election. So Patal Kanya has decided to keep TPF as a non-political organization and herself has decided to become a chief principal advisor for Tipra herself, thereby becoming a part of our family. This is a very good move. I appreciate this move, and I'm very happy that ये अंडरस्टैंडिंग के बाद, इसको हम अलायंस भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये अलायंस नहीं, हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही बैनर, एक ही सिंबल, एक ही फ्लैग के अंदर हम लोग लड़ेंगे। और पताल कन्या और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से था वो आज पूरा हुआ है, और मैं पताल कन्या को भी एक्सटेंड करता हूँ सपोर्ट जो उनका स्ट्रगल है रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स, रिगार्डिंग NRC CA, जिसमें दोनों का केस हम लोग का चल रहा है। और आज सच में बहुत बड़ा दिन है। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स लोग सीट में अंडरस्टैंडिंग करते हैं लेकिन आइडियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग करने वाले बहुत कम होते हैं। आज पताल और हम आइडियोलॉजिकली एक हुए, और अब आप देखिए कि पताल के हेल्प से आने वाले ADC इलेक्शन में हम और मजबूत होकर और थानचा लाकर और जोर से ज़मीन में उतर के लड़ेंगे। बेलाइन हम भाई, थैंक यू। कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा कुछ लिस्ट आज शाम तक हो जाएगा और कुछ कल। सर एमपी के साथ आप लोगों का क्या डिसीजन है? वो बात चल रहा है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और IPFC के साथ आप लोगों के अलायंस तोड़ गए थे? IPFC के संग मैंने अलायंस नहीं तोड़ा है, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए कि वो BJP के साथ है या नहीं है। लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो है क्लीन रीजनल अलायंस, और वो क्लीन रीजनल अलायंस अभी मुझे मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि वो BJP से बात कर रहे हैं। लेकिन IPFT के संग हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो था कि जब तक हमें हमारा पॉलिटिकल डिमांड इन राइटिंग नहीं मिलता हम कोई नेशनल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो IPFT के साथ अलायंस का बात अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नेशनल पार्टी से बात कर रहा है, और अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस कर दिया, हमसे बात नहीं किया, तो समझ में आता है कि मुझे लगता है कि अब ये अलायंस आगे चलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। TPF is a socio-political organization since from 2014, 13 June. And TPF motto is Our Land, Our Rights. And ideology detect, lead, deport all illegal migrants from Tipra, India. And our demand is NRC, Article 48 July, and we oppose CAA. And now, our greater interest for the people, for the native people of the indigenous people of the Tipra, we are going to the support the politically our His Highness Bubagra, and TPF is a socio-political organization. But now we have decided to support Bubagra and for the interest of the people, and ADC election is very important, and ADC election on the upcoming ADC election there is no now G.K. Rao is sitting, but it is the indigenous people rights. There is a lots of violation of indigenous people rights. That's why we have decided to protect and to arise our rights. That's why we have decided to upcoming ADC election we will be participate in the election part. But TPF is a socio-political organization. But as a people of Tipra,
as a Tipra sir, we support fully heart and soul to our Bubagra politically, and we silence politically to Bubagra. And I will support heart and soul. There is no any condition of the vote bank politics. There is condition is our ideology. Chandan, can I tell you something? Why did it take so long? I think she wanted clarification that we have to have a clean regional alliance. Regional party alliance. My there is I have seen. IPF is the alliance with BJP. That is how IPF regional alliance claim. And till today, there is two cabinet minister, and there is not called pure alliance. Can I just say something? My understanding with IPFT was that there will be no alliance with any national party unless we get our rights in writing. But what I am seeing is that there is some negotiations going on. I am hearing it from media. I have not been called even once by BJP. I am not the part of the BJP alliance. And they have signed an agreement with me, which you all media knows. But they are also having talk with BJP, which is where I am not a part of. It makes it very uncomfortable for me to explain to people कि अलायंस तो हमारे साथ हुआ है, अलायंस में लिखा गया है कि हम नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं करेंगे जब तक राइटिंग में नहीं लिखा जाएगा कि हम हमारा पॉलिटिकल डिमांड्स को आप राइटिंग में दीजिए. लेकिन तब मुझे सुनने में आ रहा है कि हर 2 दिन के बाद मीटिंग हो रही है, तो ये मैं कंफर्टेबल नहीं. इसी के लिए पताल भी वेट कर रही थी. मैंने पताल को अपना पोजीशन, मैंने पताल को पूरा अपना बात बताया, वो भी ऑब्जर्व किया. एंड इवेंचुअली सबको एक बात मालूम होना चाहिए, मैं अपना रीजनल लाइन से चल रहा हूँ. अगर कोई उससे बाहर निकलता है तो वो उसका सवाल का जवाब वही दे, मैं नहीं दूंगा. इट इज देयर इंटरनल मैटर. माई मैटर इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रीजनल क्लीन रीजनल अलायंस एंड contest the ADC election. But what should you is seats? No, we will not, because they will already announce 18 seats. They are still meeting at BJP. And हमसे पूछा नहीं ना, हमसे पूछ के तो आप अलायंस में हमसे पूछा नहीं किया. So it does not make any sense. See, alliance cannot happen because only on seats. I am not interested in seats. I am interested in ideology. What is our ideology? We cannot go and tell our people that this is our ideology and then tomorrow for seats compromise on our ideology. So today I may be 0, but I will fight, and I may remain 0, but I will not compromise on my ideology. That is very clear. And if the BJP has to talk, I had already told the IPFT, हम अगरतला में बात नहीं करेंगे. अगर बात करना है तो हमें दिल्ली में बात करना चाहिए. लेकिन यहाँ में तो हम 2 किलोमीटर दूर किसी के घर में जाके बात कर रहे हैं. आप दिल्ली को छोड़ो, हम तो अगरतला से भी बाहर निकल के बात, गुवाहाटी में भी बात नहीं हो रहा है. अगर असेंबली इलेक्शन के बाद तो गुवाहाटी में बात हो रहा था, अब तो गुवाहाटी में भी नहीं हो रहा है, अब तो अगरतला में ही हो रहा है. मैं तो दिल्ली का बात कर रहा था, दिल्ली तो बहुत दूर है. So I don't see any possibility of any alliance between IPFT and me. But I'll still wait because NC Babu is a very senior man. Mewar is someone I've known for very long. I will still wait to see कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले दिन में. मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं IPFT के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. मेरा लाइन स्ट्रेट है, मैं अपने लाइन में चलूँगा, उनका लाइन जो है वो उनके लाइन में चले. पॉलिटिक्स में तू मैं करने से हमारा ही तोहफा का नुकसान होगा. मैं ऐसा गंदा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ. जब मैंने कांग्रेस छोड़ा था, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, आज भी नहीं कहता हूँ. आज अगर ये अलायंस नहीं हुआ तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा. लेकिन मेरा आइडियोलॉजी जो पाताल के साथ है, दूसरे रीजनल पार्टीज भी आए हैं उनके साथ है, वो स्ट्रेट है कि हम अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. सीट्स के लिए, रुपये के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. 1 hour for me to explain, but my line is very clear. If you go through the history, I think all of them are also aware. My line is very clear on CAA, on NRC, on the future of the indigenous people, and they cannot be compromised on seat sharing or short-term alliances which are not ethical. That is what I am saying. वो मैंने अभी जवाब दे दिया है. बात चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और मैं आशा कर, देखिए एक बात है, मैं विजय रामकोल का बहुत आदर करता हूँ.
विजय रामफल का मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और जो भी हो आईएनपीटी के साथ अलायंस हो या ना हो, मैं विजय रामफल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दूंगा। ये मेरा बात बहुत क्लियर है। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि एक पेट्रियट सन ऑफ द सॉइल जैसा विजय रामफल, जिसने अपना पूरा जिंदगी अपने स्टेट के लिए दिया है, अपने कम्युनिटी के लिए दिया है, पूरे 19 ट्राइब्स के लिए दिया है, पूरे स्टेट के लिए दिया है, मैं विजय रामफल के खिलाफ एक कैंडिडेट भी नहीं रखूंगा। इतना मेरा रिस्पेक्ट है, मैं ये क्लियर करता हूं। आईएनपीटी मेरे लिए विजय रामफल है, विजय रामफल नहीं है तो आईएनपीटी भी नहीं है। ये मेरा लाइन है। मैं विजय रामफल को आदर करता हूं और ये उनसे नई बात करके भी मैं अनाउंस कर देता हूं। महाराज एक चीज अच्छी ऐसा हो गया कि आपने 5 मार्च को भी वहां पर रैली में आईपीएफ भी नहीं गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आई डोंट नो, आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं तो उनकी रैली में गया, मैं तो उनसे मिल रहा था। ठीक है, वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए वो आप उनसे पूछिए। मैंने तो उनको निमंत्रण दिया, मैंने खुद फोन करके बोला था। वो नहीं आए, वो उनका रीजन है, आप उनसे पूछिए। लेकिन मेरा जो काम था, धर्म था, मैंने वो किया। मैं उनकी रैली में गया, उसके बाद मैंने विजय रामफल को एनसी दे बर्मा से भी मिलवाया, मैंने पाताल कन्या के बारे भी एनसी बाबू से बात किया। और अगर वो बीजेपी से बात कर रहे हैं तो वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं एक ही बात करना चाहता हूं और सबको कहना चाहता हूं, मेरे बहुत दोस्त भी हैं बीजेपी में, कि महाराजा के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। महाराजा का खुद का एक अलग पार्टी है और जिसको भी आना है वो उस पार्टी में आकर बात करे। मुझे दिखाकर किसी और से सीट शेयरिंग का निगोशिएशन करने का किसी को हक नहीं बनता है। और अगर किसी ने ये किया है तो ये गलत बात है, क्योंकि मेरा नाम का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Thank you. Now that you have said that you are not going to give candidate against INPT. I am saying it before the alliance has even started. See, Chandan, I am a very different sort of guy. See, I am talking to you by name, Chandan. I don't know East Mojo. I know Chandan Pandey. I know Pinaki. I don't know ANI. I know क्या बोलता Kamal Palai. I don't care about Top Tripura. I know Vijay Rampal, and I love Vijay Rampal. So you're talking about. So I am not single. Wherever Vijay Rampal stands, he fights from 10 seats. I will not put up a candidate. My point is Vijay Rampal is someone I respect. So out of respect for him, the alliance talks are still going on. But even before the alliance is announced, I am saying that Vijay Rampal के खिलाफ प्रद्योत माणिक्य कैंडिडेट नहीं देगा, कि मैं विजय रामफल को दिल से प्यार करता हूं और उसका सैक्रिफाइस जो है हमारे स्टेट के लिए, वो इतना आसान से हम लोग नहीं भूल सकते। क्योंकि इलेक्शन जीते एक सीट के लिए आप इतना बड़ा इंसान को नीचा नहीं कर सकते। कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया क्या? और भी प्रोसेस में है। आज हम थोड़ा लिस्ट निकालेंगे और कल और लिस्ट आएगी। लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या दिमाग में रखा गया है कैंडिडेट सिलेक्शन के टाइम में? क्लीन रिकॉर्ड, विमेन पार्टिसिपेशन, education background and commitment to ideology. That is the most important. कब तक आ सकते हैं कैंडिडेट लिस्ट? मैं आपको फर्स्ट एसएमएस कर दूंगा, तब मीडिया को रिलीज करूंगा। थैंक यू। तो सुना है जो आईपीएफ के वजह आपका साथ है। आपने सुना है तो आप उनका मेरा नंबर दे दीजिए और उनको बोलिए मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए। शायद आपका अच्छा नॉलेज है मुझसे ज्यादा, लेकिन मैं देखता वो देखिए, ये स्पेकुलेशन है, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।